Hello everyone, Namaskar. Welcome to Super Grades Cat by Top Rankers. I am Mayur and today we'll be letting you know the must avoid mistakes in CAT that one should avoid on the D-Day or during this course of preparation so that his or her score doesn't hamper. हाँ यार जाने या अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हर किसी से हो ही जाती हैं और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा स्कोर कम हो जाता है. So, without wasting much of your time, I would like to start with first common mistake that everyone does is poor time management. Yes, poor time management. Because we think that अरे एग्जाम सेंटर तो मुझे पता है मेरा दोस्त ड्रॉप कर देगा या फिर मैं कैब बुक करके चला जाऊंगा एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्लेस हर कोई जा सकता है वहां पे बहुत आसानी से. डू नॉट रिलाई ऑन सच फैक्टर्स. इफ यू आर लैंडिंग इन अ न्यू सिटी प्लीज ट्राई टू विजिट द सेंटर and keep track of the route and the time taken and all set of possible delays that can happen on the D-Day and maintain that buffer so that you reach the examination center before the reporting time. Also, try to have a hassle-free travel without keeping in mind the sharing part or reliability on friends to drop you. ये सारी चीजें दिमाग में ना रखते हुए hassle free travel रखो because you have put so much of money, so much of effort and so much of time while preparing for CAT. तो फिर थोड़े से पैसे के लिए do not create hassle for yourself कि एग्जाम वाले दिन आप लेट हो जाओ. Next important role of time management is comes into picture when you enter the section. You start your particular section. The proper distribution or the balanced distribution of time should be there for every question. Do not stuck on the tricky questions so that fair and easy questions जो हैं उसके लिए बहुत कम टाइम बचे and we regret कि shit यार ये questions तो मैं definitely कर सकता था but because of time management मैं ये questions नहीं कर पाया. This should not happen. The next mistake that one does is keeping all the panic and stress on yourself. Leave all the worries outside the examination hall. एग्जाम में एंटर हो गए सब छोड़ दो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना है एंड ऑल्सो डू नॉट पुट ओवर एक्सपेक्टेशंस कि आज अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा. अरे जो होगा देखा जाएगा. जस्ट थिंक अबाउट कि आई एम हियर टू परफॉर्म एंड आई विल गिव माई 101%. So leave all panic and stress outside the examination. Do not panic yourself by putting your own expectation. किसी और ने बोला हो ना बोला हो कि भाई तुझे परफॉर्म करना है, but you are keeping all those expectations by yourself. कि today I have to perform. I have to prove myself. Do not keep this in mind that you are here to prove something. You are here just to perform, and it is just a normal examination as any other exam is. Next mistake that one does during the course of preparation is maintaining an unhealthy lifestyle. हम सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम देर रात तक पढ़ते हैं. हम खाना खाना भूल जाते हैं इसलिए कुछ भी ऑर्डर करके तुरंत खा लेते हैं. हम पानी पीना भूल जाते हैं एंड अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू वीकनेस एक्सर्शन और एंजाइटी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. सो जैसे ही आपके एडमिट कार्ड रिलीज हुए हैं कीप maintaining try maintaining your biological clocks, try setting your biological clocks for the D-Day कि ये मेरा स्लॉट है मैं इस टाइम पे उठूंगा इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करूंगा इस टाइम पे सेंटर पहुंच जाऊंगा और उस टाइम पे मॉक देने की कोशिश करो. दूसरी चीज आजकल तो हैशटैग स्टे हाइड्रेटेड ट्रेंडिंग है तो प्लीज स्टे हाइड्रेटेड क्योंकि उससे सारा एक्सर्शन सारी एंजाइटी दूर हो जाती है. एग्जाम वाले दिन भी ऐसा ना हो कि हम कुछ खा के ही नहीं जा रहे क्योंकि मुझे नींद आ जाती है तो वहां पे जाके हमें अल्टीमेटली वीकनेस फील हो रही है. हम क्वांट वाले सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते हमारी आंखें ही नहीं खुल रही हैं या फिर हमें भूख बहुत ज्यादा लग जाती है इसलिए हम इतना खा के चले गए कि एग्जाम में नींद आ रही है. तो मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस एंड अ हेल्दी डाइट फॉर एटलीस्ट अ वीक. Try maintaining your biological clock for a week, at least a week, so that you give your 101% performance physically on the exam day. Next common mistake is forgetting documents. अरे मैं तो जाते वक्त प्रिंट आउट निकलवा लूंगा. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 30 seconds. डू नॉट थिंक लाइक दिस. कैट वाले पागल नहीं है जो आपको इतने सारे इंस्ट्रक्शंस भर भर के एडमिट कार्ड के नीचे देते हैं. रीड बिटवीन दी लाइंस जैसे पैसेज में करते हो. हर एक चीज प्रॉपरली पढ़ो. मेंटेन अ चेकलिस्ट. एक फोल्डर बना लो उसमें सारे प्रिंट आउट सारे फोटोकॉपी सारे आईडीज पहले से रख लो. 2 दिन पहले उस चेकलिस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करो ताकि एग्जाम वाले दिन कोई भी अननेसेसरी हैसल क्रिएट ना हो अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. और ये जो चेकलिस्ट है इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन कैट बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन अदर मैनेजमेंट एग्जामिनेशन जिसमें आपको यही सारे ऑलमोस्ट यही सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं
तो मेंटेन अ चेकलिस्ट ना, बी अ मैनेजर, यू आर अपेयरिंग फॉर अ मैनेजमेंट टेस्ट. नेक्स्ट इज गेटिंग stuck on a tricky question. As I've introduced this thing earlier also, कि ईगो पे नहीं लेना है कि यार ये टॉपिक तो मेरा स्ट्रांग है, मैं ये कैसे नहीं कर सकता, मुझे तो ये करना ही चाहिए. कीप योर ईगो असाइड, यू आर नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग. अगर आपको 1 या 1.5 मिनट में अंदाजा हो जाता है, मेजरली 1 मिनट में, 60 सेकेंड्स में आपको पता चल जाता है, 75 सेकेंड्स में या 90 सेकेंड्स में, कि दिस क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपर क्वेश्चन फॉर दिस टाइम फ्रेम, यहाँ पे तो करने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो उसको छोड़ दो ना यार और आगे बढ़ो. किसी भी क्वेश्चन से बिल्कुल दिल नहीं लगाना है कि ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ. एग्जाम के बाद आप 4 बार सॉल्व कर लेना अगर आपका फेवरेट टॉपिक है, पर एग्जाम में दिल नहीं लगाना है. गॉट इट. डू नॉट स्टक ऑन अ ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज बी प्रिपेयर्ड, देयर विल बी ट्रैप्स जो कि आपको फैसिनेट करेंगे और उसकी वजह से आप टाइम वेस्ट करेंगे, अल्टीमेटली वो गोल गोल घूमते रहेंगे और आपका आंसर नहीं आएगा. तो वो सारी चीजें आपको एग्जाम में अवॉइड करनी है. 1 या 1.5 मिनट वेस्ट हो गया, आगे बढ़ जाओ. द नेक्स्ट मिस्टेक दैट एवरीवन डज इज डिस्कसिंग द ट्रेंड्स इन द कैट एग्जामिनेशन. कि फर्स्ट स्लॉट में क्या हुआ, सेकंड स्लॉट में क्या हुआ. क्योंकि जो फर्स्ट स्लॉट वाले दे गो लाइक कि भाई रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचा है वही कॉफी, बट सेकंड स्लॉट वाले इन अ होप कि पिछले स्लॉट वाले मिलेंगे, उनसे पूछेंगे क्या हुआ. दोस्तों का पता ही होता है कि पिछला स्लॉट तक किस किस का था, उससे डिस्कस करेंगे. डू नॉट go in such hopes. Do not discuss anything. It is always better not to know about the previous slots, because 3 या 4 साल के पेपर आप उठा के देख लो, कभी भी कोई पैटर्न या कोई भी टॉपिक या डिफिकल्टी लेवल, इवन डिफिकल्टी लेवल्स भी मैच नहीं होते. तो गो नाइव, गो नेसेंट, जस्ट कीप इन माइंड आई हैव टू परफॉर्म. नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज क्यूरियस अबाउट अदर्स. चलो अब एग्जाम सेंटर पे भी पहुंच गए, एग्जाम में हमने किसी से कुछ डिस्कस किया भी नहीं, हम पहुंच गए, बट एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद हमसे 4 क्वेश्चन बने, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है तो इधर उधर देखने लगे. डू नॉट डू दिस. अरे इसने तो इतने ग्रीन मार्क कर लिए, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसने तो मार्क एंड रिव्यू कर रखे हैं, अब तो इससे कुछ नहीं होने वाला, ये कितने क्लिक कर रहा है, आई एम गेटिंग इरिटेट. डू नॉट फोकस ऑन अदर्स, फोकस ऑन योरसेल्फ. आपने सिर्फ 4 क्वेश्चंस किए हैं, आपको ये फोकस करना चाहिए कि इन 4 से मैं 8 क्वेश्चन कैसे बना सकता हूँ. डू नॉट थिंक अबाउट कि यार इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो मुझे इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकाना है. Next mistake that happens is being underdressed or overdressed. Keeping in mind कि ठंड का मौसम है, हम overdress होके चले गए, इनर स्वेटर एंड जैकेट सब पहन के चले गए, एंड देन वी आर स्वेटिंग इनसाइड द सेंटर. अंदर जाने के बाद हमें पसीने आ रहे हैं, देन वी आर थिंकिंग कि ये कपड़े कहाँ उतार के रखूं, फिर एग्जाम हॉल के अंदर नहीं रख सकते, बाहर रखने जाना पड़ेगा, फिर खो ना जाए, और ये सारी चीजों में हम फंस जाते हैं जिसकी वजह से हमारा ध्यान जो है वो भटक सकता है एग्जाम से. तो हमें एक ऐसा ड्रेस चूज करना है, क्योंकि हमें पता है मौसम कैसा है, एक दिन में तो चेंज हो नहीं जाएगा, एक दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि भाई सर्दी होने वाली, गर्मी होने वाली, उसके हिसाब से बैलेंस अटायर पहन के जाओ. या फिर बिल्कुल ही अंडर ड्रेस चले गए कि सिर्फ टी शर्ट्स पहन के या सिंपल कपड़े पहन के चले गए पतले से, और वहां बैठ के अंदर कांप रहे हो, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द एग्जामिनेशन. एंड ऑल्सो बी रेडी फॉर दी सरप्राइजेस. दे कैन इवन आस्क यू टू रिमूव योर शूज एंड सॉक्स. डू नॉट आर्ग्यू, जस्ट ट्राई to dress properly and comfortably. Do not carry metallic things like earrings, pendants, chains, or bangles or bracelets. Please try maintaining simple, decent, and comfortable dress on the D-Day, जिसमें ना तो सर्दी लगे ना गर्मी लगे. एक थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, there is no situation called ideal situation, but थोड़े बहुत से ज्यादा वेरिएशन ही ना हो जाए जिसकी वजह से मेरे एग्जाम हैम्पर हो जाए. The last the last second mistake that one does is losing calm while reading the question paper. Yes, जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगने लगता है कि हम तो डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं और आंसर टिक कर देते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, या तो सिली मिस्टेक हो जाएगी, या फिर while reading that पॉइंट की बात हमें रियलाइज होता है कि इससे पहले की हुई थी पॉइंट की बात, ये तो पॉइंट की बात नहीं है, और उसको रीड करने के बाद पता चलता है लास्ट थर्ड लाइन वाज इंपॉर्टेंट, और उससे पता चलता है इससे पहले वाली लाइन काम की थी. अल्टीमेटली मैंने तो पूरा टाइम दे दिया और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जो वो पॉइंट की बात रीड कर रहा था, तो मेरे तो 30-40 सेकंड्स तो ऐसे ही वेस्ट हो गए. तो हमें वो टाइम तो बचाना है यार, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो मेंटेन योर काम, गो स्लो एंड स्टडी. दैट इज द की टू सक्सेस इन कैट एग्जामिनेशन. यस, आपको स्लोली स्लोली क्वेश्चंस रीड करने हैं, 1 या 1.5 मिनट देना है, क्योंकि अगर एक वर्ड भी होता है
that creates all the difference while answering the question. तो क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं. We have to maintain our calm and composure while answering the questions and keep your reset button on. कुछ भी गलत हो जाता है, कुछ भी गलत हो जाता है तो रीसेट बटन दबाओ, वापस प्रेजेंट में आ जाओ. पिछला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, रीसेट दबा लो. पिछला क्वेश्चन गलत हो गया, रीसेट दबा लो. टाइम वेस्ट हो गया, रीसेट दबा लो. पिछला सेक्शन खराब हो गया, रीसेट दबा लो. एवरी टाइम यू हैव टू कीप resetting your brain so that you perform exceptionally well in the present question. ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली सही होने वाला है और इस क्वेश्चन में मैं कोई गलती नहीं करूंगा और इस पे पिछले वाले क्वेश्चन का कोई भी सुपर इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए. Last but not the least, that mistake happens is following rigid strategies. मेरे दोस्तों ने और मैंने तो बैठ के ये स्ट्रैटेजी बनाई थी तो मैं ऐसे ही परफॉर्म करने वाला हूँ. ये सेट ऑफ रूल्स है जो कि मैं परफॉर्म करने वाला हूँ. या फिर मेरे क्लास में तो ऐसे डिस्कस किया था टीचर ने, या फिर मैं तो सारे मॉक्स में यही करते हैं. प्लीज डू नॉट बी रिजिड अबाउट थिंग्स, बी फ्लेक्सिबल. हो सकता है 40-50% आपकी स्ट्रैटेजीज वर्क कर जाए बट 50-60% आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम अगर इजी आया तो आपकी स्ट्रेटेजीज अलग होंगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलग होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स यू हैव टू टेक इज डिफरेंट. अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो नंबर ऑफ राउंड्स आपके बढ़ जाएंगे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड पर राउंड आपके चेंज हो जाएंगे. क्वेश्चन के टाइप कौन सा है उस पर भी स्ट्रेटेजीज डिपेंड करेंगी. दूसरी चीज, आप एक इंडिविजुअल हो तो एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट हिज ओन स्ट्रेंथ एंड ओन वीकनेसेस. तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से भी आपकी स्ट्रेटेजीज डिपेंड करेंगे. तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं स्ट्रेटजीज को. तो बी फ्लेक्सिबल एंड ट्राई नॉट टू फॉलो सर्टेन थिंग्स रिजिडली. बी फ्लेक्सिबल कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आई कैन मेंटेन दैट काम. Keeping all these mistakes in mind, try, hit the cat hard, and you will be there into a very good college. With this, I would like to take your leave. Keep liking, sharing, and subscribing, and leave comments so that we can answer your further queries regarding CAT examination. Have a nice day. Thank you.